السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، آج 19واں رمضان ہے، جس کے موقع پہ آج علامہ اعجاز فرخ صاحب اپنا 19واں بیان پیش کریں گے۔ تو آئیے بنا دیر کی ان کے بیان کی جانب بڑھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں ان کا 19واں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ ہے۔ کل جو گفتگو آپ نے سنی تھی اس میں ہم جنگ بدر کبریٰ تک پہنچے تھے۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے جو 2 ہجری میں ہوئی۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم یہ جو 4-5 دن ہم کو میسر آ جاتے ہیں، اس کے بعد تو آخری دہر میں تاخراتیں جتنی بھی ہوتی ہیں سب قدر کی راتیں ہوتی ہیں، تو ان 4-5 دنوں میں ہم ایک ایک غزوے کی تفصیل سے واقف ہوتے چلیں۔ یہ بھی ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ جانے کہ اسلام کتنے مرحلوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم رفتہ رفتہ اس بات پر گفتگو کریں گے۔ کچھ عرصہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 11 ہجری تک کے اسلام کتنے مرحلوں سے گزرا۔ اس کے بعد ہم ایک پہلو یہ اختیار کریں گے کہ اسلام اور علوم جدیدہ، نئے علوم، آج نئی نسل ترقی کی راہوں میں ہے، مواصلاتی نظام بدل گئے ہیں، پڑھنے لکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ آج مغربی افکار نئی نسل کے ذہن پر طاری ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ چونکہ علوم میں اسلامی کے ایک ہی معنی لیے گئے ہیں، اور وہ یہ معنی ہے کہ دین کا علم حاصل کرو۔ علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ فقط ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، اور باقی کو دنیاوی علم کی صف میں رکھا جاتا ہے۔ علم بس علم ہے۔ علم کی اقسام 2 ہیں، ایک علم الادیان یعنی دینوں کا علم، اور ایک علم الابدان یعنی باڈیز کا علم۔ باڈی، ینگر جنریشن کو یہ بات معلوم ہے، اور ان کو میں بہت زیادہ تفصیل سے لے جا کے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے میٹر، ویر ایور دا ورڈ تھنگ اپلائز اٹ مینس اٹ از اے میٹر، اینڈ میٹر ہیز گاٹ 3 stages: solids, liquids and gases. So everywhere, whenever you find a thing, 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 whatever you say, a thing, thing is actually a matter. تو جتنے بھی میٹرز ہیں، مادہ کا اطلاق جن جن چیزوں پر ہوتا ہے، wherever the word matter applies، آپ کو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ صرف آئنسٹائن یا پھر اسٹیفن ہاکنگ کی تھیئریز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو یہ میسر نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کر کے اپنی مادی ترقی کے ساتھ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اگر مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں ایک ایک تحقیق کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، اور شاید مجھے اتنا وقت مل بھی جائے، ایک ایک تحقیق کو نکال کر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور یہ بتلا سکوں میں آپ کو کہ کون سی تحقیق ایسی ہے جو مسلمانوں نے پیش کی ہے، اور کون سی تحقیق ایسی ہے جو مسلمانوں نے پیش نہیں کی ہے۔ لیکن میں یہ برابر عرض کرنے کے موقف میں ہوں کہ اگر مغرب آج کسی مقام پر پہنچا ہے تو اس نے یہ علم حاصل کیا صرف اسلام ہی سے۔ اسلام میں یہ ترقی ہو چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 300-400 برس میں ہم پر تھوڑی غفلت طاری ہو گئی،
ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 सदियों में, एक तो ज़र-ओ-सीम की माल दौलत की अफरात व तफरीत कह लीजिए, दूसरी चीज़ ये है कि इल्म से हमारा बेबहरा होना से समझ लीजिए। इस सदी में, यानी 21वीं सदी है, मैं 20वीं सदी और 21वीं सदी को मिला के कह रहा हूँ। 20वीं सदी तक तो इल्म का रुझान रहा, लेकिन 1970 के बाद से ये रुझानात में कुछ कमी वाक़ हुई है। ख़ास तौर पे हमारे बर्र सग़ीर में कमी वाक़ हुई है। मुसलमानों में इल्मी रुझान ज़रा कम सा पाया गया है। उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन वो मेरी तक़रीर का मौजू नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि जितने उलूम हैं, मेन टॉपिक्स ऑफ द नॉलेज, मेन टॉपिक्स जिस पर पूरी इंसानी ज़िंदगी का दारो मदार है, इसमें से 80 to 90% ये सब मुसलमानों की देन है दुनिया को। हम रफ्ता रफ्ता मबाहिस में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जज्बात की धुन में कोई तकरीर कर रहा हूँ। मेरे पास डाटा है, मैं डाटा को लाऊंगा, एक एक साइंटिस्ट का नाम लूँगा, उसकी बायोग्राफी थोड़ी थोड़ी बयान करूँगा, ये बतलाऊँगा कि कुरान में ये इल्म कहाँ है और ये इल्म हमको इस्लाम में कहाँ से मिला, किसने दिया, किसने तरक्की। आज की हद तक के मैं एक जुमला कह के तकरीर को आगे ले जाना चाहता हूँ कि नई नस्ल ज़ाहिर है कि आज तरक्की की राहों में है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का आगाज़ किसने किया, जिसे उर्दू में हम लोग इल्म कीमिया कहते हैं और अंग्रेज़ी में केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री का आगाज़ किसने किया, तो ज़ाहिर है कि मैट्रिकुलेशन में या 9वीं 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा बड़ी आसानी से या आज इंटरनेट पर या अपने टैब पर उंगलियों को रख कर ये बतला देगा कि जाबिर इब्न हय्यान केमिस्ट्री का आगाज़ करने वाला है। गैबर द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये बड़ी आसानी से कह रहे। लेकिन शायद उसको ये नहीं मालूम हो कि इसने ये इल्म कहाँ से हासिल किया, इसने इस इल्म को कहाँ से उठाया। आज जब मैं आपके सामने अप्रैल के इस हिस्से में तकरीर कर रहा हूँ, 24 अप्रैल को, कि जहाँ एक मामूली केमिस्ट्री के डोज के लिए दुनिया परेशान है, एक मामूली वायरस के लिए दुनिया परेशान है, एक ही साथ मैं दोनों खबरें पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। एक खबर ये पढ़ी जा रही है कि मरीख पर नासा का हेलीकॉप्टर उड़ा, दूसरी खबर ये पढ़ी जा रही है मरीख पर, मार्स पर, जिसे हिंदी में मंगल, अंग्रेजी में मार्स और उर्दू में मरीख कहते हैं। मरीख में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल दिया गया। कितनी तरक्की है दुनिया की, कितनी तरक्की है दुनिया की, और इस पर हमको हैरत भी है। लेकिन आज वही ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ तरस रहे हैं। एक तरफ ये तरक्की पढ़ रहा हूँ मैं और एक तरफ ये सवाल देख रहा हूँ। क्या ख्याल है आपका, आज अगर सिर्फ एक दिन के लिए फार्मेसी की दुकानें बंद हो जाएं, फार्मेसी को क्लोज डाउन कर दिया जाए, तो आलम इंसानियत का क्या हाल हो। दर्द के मारे बिलक बिलक के आलम इंसानियत मर जाए। मैं यही 60-70 साल के दरमियान का तज़किरा कर रहा हूँ आपसे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर, और ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, देखी हुई बात आपको बतला रहा हूँ, बढ़ती हुई बात बतला रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के दौर की बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि इन द पीरियड ऑफ 1950s, यू कैन से 50s में दर्द के लिए दवा सिर्फ एस्प्रिन थी। फिर ज़रा सी तरक्की हुई, अनासिन आई, फिर ज़रा सी तरक्की हुई, अनाल्जिन आई, फिर इससे ज़रा सी और तरक्की हुई, पैरासीटामॉल आई, फिर ज़रा सी और तरक्की हुई, डिक्लोफेनेक सोडियम पेन के लिए आई, फिर ज़रा और तरक्की हुई, डिक्लोफेनेक पोटासियम आई।
یہ ترقی ہے فارمیسی کی، لیکن اس کا آغاز جابر ابن حیان سے ہوا، اور جابر ابن حیان نے یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا، یعنی رسول اکرم کے ایک داماد حضرت علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کے بیٹے حسن، ان کے حسن کے بھائی حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین علی ابن الحسین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ دور ہے کہ نعمان بن ثابت حضرت ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے مکتب سے تعلیم پا کے چلے ہیں۔ تو علوم کی اشاعت یا نبی کے پاس رہی ہے یا نبی کے گھرانے میں رہی ہے۔ اس گھرانے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، فقہ کی کتابوں کو دیکھیں، علوم جدیدہ کی کتابوں کو دیکھیں کہ جہاں جہاں سے ان لوگوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ موضوع تو اس وقت میرا کچھ اور ہے، لیکن جب تقریر چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 جملے بھی آج کی تقریر میں تمہید کے طور پر آپ کے پاس محفوظ رہیں۔ It was perhaps 1966 اور اس وقت ٹائمس آف انڈیا میں ایک آرٹیکل شائع ہوا۔ اس نے وہ آرٹیکل امرتا بازار پترکا سے کاپی کیا تھا انگریزی میں۔ امرتا بازار پترکا کلکتہ کا ایک مشہور اخبار رہا ہے اس زمانے میں، وہاں سے اس نے لیا تھا، اور یہ شائع ہوا کہ کلکتہ میں ایک عمارت کی کھدائیوں کے دوران، یعنی ایک پرانی عمارت تھی، جب اس کو کھودا گیا تو اس کے فاؤنڈیشنز میں مزدوروں کو ایک لوہے کا صندوق ملا۔ مزدور خوش ہوئے کہ شاید کوئی دفینہ ہاتھ آیا ہو، اشرفیہ ہو اس دور کے، خزانہ ہو اس دور کا، لیکن جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک قدیم اور بوسیدہ کتاب ملی۔ بس مایوس ہوئے اور وہ لے کے گئے، لوگوں نے دیکھا اس کو تو کہا کہ اس کتاب کو اورینٹ لانگمنس، اس زمانے میں اورینٹ لانگمنس آج بھی پبلشرز ہیں، اورینٹ لانگمنس میں لے جاؤ، وہ لوگ شاید اس کو تم سے کچھ خرید لیں۔ یہ لوگ گئے، اورینٹ لانگمنس نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے، یعنی وہاں جو کوئی بھی ان کا مینیجر تھا اس نے پوچھا قدیم کتاب کی کیا قیمت ہے، انہوں نے کہا جو آپ دے دیں۔ پہلے تو یہ لوگ گئے، کتاب عربی میں تھی، تو یہ لوگ ڈفرینٹ اسکالرس کے پاس گئے، عربین اسکالرس کے پاس گئے۔ جب وہاں ان کو کوئی قیمت یا پذیرائی نہیں ہوئی، ان کو قیمت نہ مل سکی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اورینٹ لانگمنس کے پاس چلے جاؤ، وہ قدیم کتابیں خریدتے ہیں۔ وہاں گئے، اس نے کہا قیمت بتلاؤ، ان لوگوں نے کہا جو آپ دے دیں۔ بہرحال جو کچھ بھی رقم رہی ہو، اورینٹ لانگمنس والوں نے ادا کی، کتاب خرید لی، ایک رسید لکھوا لی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی، امرتا بازار پترکا میں یہ خبر چھپی۔ میں آج کی تقریر کے کچھ حصے کو نئی نسل کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ چھپی کہ عربی کی ایک قدیم مخطوطہ کتاب کلکتے کی ایک عمارت کی کھدائیوں میں دستیاب ہوئی ہے، اس کو اورینٹ لانگمنس نے خریدا۔ جب عربی کی مخطوطہ کتاب ہے اور اورینٹ لانگمنس نے خریدا، عربی کا تعلق مسلمانوں سے تصور کیا جاتا ہے، اورینٹ لانگمنس انگریز ہے، تو تب ذرا جا کے ذہن چونکا۔ وہ لوگ اورینٹ لانگمنس کے پاس گئے، بڑے بڑے اسکالرس تمام مل کے گئے اور جا کر کہا سنا آپ نے کوئی کتاب خریدی ہے؟ کہا ہاں خریدی ہے۔ کہا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو؟ کہا ہاں دیکھیے۔ جب وہ کتاب سامنے لا کر رکھی گئی تو کہا آپ اس کو کتنے کا بیچیں گے؟ آپ نے یہ کتاب کتنے میں خریدی ہے؟ کہا خرید لی جتنے میں خریدنا تھا۔ کتنے؟ تو کہا آپ یہ کتاب کتنے کی بیچیں گے؟ کہا میں 2 کروڑ کی نہیں بیچوں گا۔ یہ 1966 کی بات ہے، جب سونا 100 روپے میں 10 گرام تھا۔
2 करोड़ में नहीं बेचूंगा। कहा आप जिद करते हैं? कहा नहीं, हम जिद नहीं कर रहे हैं। ये किताब तो देखिए कि ये है क्या। जाबिर इब्न हय्यान, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ने केमिस्ट्री पर 7 किताबें लिखी थी, 7 बुक्स। उसमें से 6 किताबें अब तक के दस्तयाब हो चुकी थी जगह जगह। 7वीं किताब की तलाश जारी थी। दिस इज द 7th वॉल्यूम। ये 7वां वॉल्यूम है जो कलर्स एंड पेंट्स पर है। कलर और चीज है, पेंट और चीज है। कलर रंग है, पेंट एंटीक्रोसिव ट्रीटमेंट है। कलर्स एंड पेंट्स पर, एंटीक्रोसिव ट्रीटमेंट पर, डाइंग, आई मीन रंगवाई, डाइंग एंड पेंट्स, कलर्स एंड पेंट्स। जाबिर इब्न हय्यान 140 हिजरी, अब मैं 1442 हिजरी में तकरीर कर रहा हूं। 1300 साल पहले इस्लाम में एंटीक्रोसिव ट्रीटमेंट के ऊपर किताब आ चुकी थी। आप किसी ऊंटों के काफिले वाले मजहब में नहीं हैं, आप बड़े जदीद मजहब में हैं। बदकिस्मती सिर्फ हमारी ये है कि हमने इस्लाम को यूँ ले लिया कि भाई खाली बराए सवाब इसमें हमको जाना है, बराए सवाब हमको सुनना है। लेकिन अगर आप हकीकत शय मालूम करना चाहें, शय की माहियत मालूम करना चाहें, एलिमेंट्स को मालूम करना चाहें, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से कंपाउंड्स को मालूम करना चाहें, इफेक्ट्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी को मालूम करना चाहें, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर कंपाउंड्स के असरात को मालूम करना चाहें, तो इसकी बेसिक सिवाय इस्लाम के आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कोई मजहब में नहीं, किसी मजहब में नहीं। इसी शहर का रहने वाला हूं, कहीं बाहर से आकर तकरीरें नहीं कर रहा हूं मैं। आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेंगी, जीविश पीपल के पास नहीं मिलेंगी। हिंदुस्तान ने बहरहाल इल्म हासिल किए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। 3000 साल पहले भी उनके पास इल्म का एक सिलसिला मिलता है, लेकिन मॉडर्न साइंसेस शायद उनके पास भी नहीं मिलेंगे आपको। मेरी इतनी स्टडी तो नहीं है कि मैंने संस्कृत में वहाँ तक कि इनके उलूम को तो मैंने नहीं पढ़ा है, हालांकि पढ़ना चाहिए था मुझे, मगर मुझे शायद ज़िंदगी में इतनी फुर्सत नहीं मिल पाई कि मैं देख सकूं। मगर ये इजिप्शियंस के पास रहा है, उनके पास फ़न तामीर। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न साइंसेस है, द बैक्टीरियाज हैं, द वायरसेस हैं, द न्यू इन्वेंशंस हैं। आपको हैरत होगी कि एरोप्लेन्स के लिए ये कहा जाता है कि इसके फाउंडर राइट ब्रदर्स हैं। ये गलत है। एयरक्राफ्ट की इजाद राइट ब्रदर्स ने नहीं की। एयरक्राफ्ट की इजाद अब्बास फरनास ने की। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले का नाम अब्बास फरनास है। इसी तरह से जब आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इस्लाम ने उलूम पर कोई खदगन नहीं लगाई है, कोई पाबंदी नहीं लगाई है, किसी इल्म को हराम नहीं करार दिया है, किसी इल्म से मना नहीं किया है। इल्म हासिल करो। इल्म है, इल्म सिर्फ इल्म है। इल्म का मसरफ अलग है। आप इल्म हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर इसी 20th सेंचुरी में जब एक मेटल के बाइंडिंग्स को बाय इलेक्ट्रॉन्स तोड़कर उसको अलहदा करने की कोशिश की गई, मकसद उनका यह था कि वो उसको गोल्ड में ट्रांसफ़र कर लें। इतना ही था। द चीपर एलिमेंट को कॉस्टलियर एलिमेंट में तब्दील कर ले। ये उस एलिमेंट के जब बाइंडिंग्स को तोड़ा गया तो वो फट पड़ा जर्मनी में। फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड एटम। एटम तक पहुंचना तो इल्म है, एटम का बॉम्ब के लिए इस्तेमाल करना ये इल्म नहीं है। न्यूक्लियर तक जाना इल्म है। मैं ये कहने में कोई झिझक नहीं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं 79th ईयर में मैं चल रहा हूं, 79 साल मेरी उम्र है। अब मैं एक ऐसे समंदर के साहिल के किनारे खड़ा हुआ हूं कि जहां मेरी हथेली में कुछ नहीं है, एक ज़र्रा है, और मुझे अफसोस है कि मुझे उस ज़र्रे का भी इल्म हासिल नहीं है। इसलिए कि जब उस ज़र्रे को तोड़ा गया, पार्टिकल
ذرہ पार्टिकल को तोड़ा गया तो उसके अंदर से उसका एक नया आफताब निकल आया, इसी को न्यूक्लियर कहते हैं। ये इल्म है। कुरान जब कभी चींटी का तस्करा करता है तो आप कभी उस सूरे को भी पढ़ के देखें कि चींटी किस तरह से रहती है। कुरान कह रहा हूं मैं अपने सब्जेक्ट को एक मोड़ देकर ले जाना चाहता हूं। अगरचे कि मैं चाहता था कि इसको आज मैं जंगों की तरफ ले जाऊं, लेकिन जब बात चल पड़ी है तो मैं आपको इस तरफ, चींटी का जब तस्करा करता है तो चींटी बहुत छोटी सी हकीर मखलूक है, लेकिन यही चींटी है। द एंट्स एक किताब है वार्नर फिलिप्स की, इसने 1917 में गालिबन ये किताब लिखी। 60 साल उसने फकत अपने घर के कुएं के तरह 60 इयर्स उसने चींटी पर तहकीक की, और उसके बाद उसने एक किताब लिखी, बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम किताब नहीं है, से अराउंड 140 to 150 पेजेस की बुक है। उसमें उसने चींटी के पूरे कैरेक्टर्स को लिखा है कि चींटी ज़मीन में मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स में रहती है। चींटी का अपना एक मवासलाती निज़ाम है। चींटी अपने सामने के 2 डकों से ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का काम लेती है। चींटी अपने रिस्क को अपनी जौ से गुजार कर महफूज रखती है। चींटी अपना रिस्क ले जाकर जहाँ जमा करती है तो रिस्क रखने के गोदाम अलग हैं, अनाज रखने के गोदाम मतलब गोदाम अलग हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स अलग हैं। वो चींटियाँ जो बीमार हो जाती हैं उनको हॉस्पिटल्स पर वहाँ रखा जाता है, उनके हॉस्पिटल्स का निज़ाम अलग है, उनका क्वारंटाइन सिस्टम अलग है। काश इंसान कुदरत की इस मखलूक से सबक सीख ले तो पता चलेगा कि चींटी का पूरा निज़ाम हयात कैसा है, और फिर उसके बाद उसका तौलीदी निज़ाम कैसा है, उसकी नस्ल को बढ़ाने का फ़रोग़ का निज़ाम कैसा। कुरान ने एक ही जुमले में सारी कैफियत बयान कर दी, और फिर उसके बाद इशाअत इल्म हमारे ही इस्लामिक स्कॉलर्स के पास हमको मिला कि जब हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा था तो एक चींटी ने कहा कि तुम लोग फौरन रास्ते से हट जाओ और महफूज मकामात पर चले जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान ने चींटी को हाथ में उठाकर कहा कि तुझे कैसे पता चला कि मेरा लश्कर आ रहा है? तो कहा कि आपके लश्कर के टापों के धमक से ज़मीन से जो आ रही थी उससे मैंने अपनी कौम को ख़बरदार कर दिया कि हट जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। क़ियादत करने वाली चींटी ने, द लीडर ऑफ द एंट्स, उसने ख़बरदार कर दिया दूसरी चींटियों को कि सुलेमान का लश्कर, एक मामूली सी मखलूक, ये कैरेक्टर है लीडरशिप का। चींटी की लीडरशिप का ये कैरेक्टर है। आप देख लें, आप पढ़ लें कुरान में, आप देख लें, ये कैरेक्टर है। इस तरह से एक मखलूक का ये पूरा निज़ाम है जिसको कुरान ने बयान किया, जिसको अहादीस ने बयान किया, जिसको इल्म की अफशा करने वाली हस्तियों ने पेश किया, जिसको बाब मदीनतुल इल्म ने वाह कर दिया खोल कर कि किसका क्या कैरेक्टर है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कौन सी बूटी का मतलब ये है कि पौधा, प्लांट किसके लिए मुफीद है, किसके लिए मुज़िर है। ये जितनी कायनात में बूटियां हैं, वेजिटेशन हैं, बॉटनी हैं, इस पर अभी तक तो पूरे इंसानों की नज़र नहीं गई। बहुत बड़ी कायनात है, बहुत मुख्तसर हम देख रहे हैं। इल्म के दरिया खुले हुए हैं, समंदर के समंदर खुले हुए हैं,
खलाओं की खलाएं खुली हुई हैं, फ़ज़ाओं की फ़ज़ाएं खुली हुई हैं, निज़ाम शमसी के पूरे कवाकिब खुले हुए हैं, तारे खुले हुए हैं, प्लैनेट्स खुले हुए हैं। जाएं देखें, इससे खुदा की कुदरत में कोई कमी नहीं वाक़ होती। आपकी तरक्की से खुदावंद ताला की कुदरत में कोई कमी वाक़ नहीं होती। लेकिन इतना ज़रूर है, सब करें, सब करें, जो जी चाहे करें, जहाँ तक चाहें जाएं, तरक्की करें, निज़ाम शमसी को क्रॉस करें और आगे जाएं। खुदा की कुदरत में कोई कमी नहीं वाक़ होती है आपकी तरक्की से। लेकिन ये याद रखें कि दामन रिसालत हाथ से ना छूटे, दामन इस्लाम हाथ से ना छूटे, दामन तौहीद हाथ से ना छूटे। और उसके बाद आप जहाँ तक तरक्की करना चाहते हैं वहाँ तक जाएं, तरक्की करें, देखें। दौलत इल्म इसी में है। आज हमारी रुसवाई और ख्वारी इसीलिए हो रही है कि हमने इस्लाम को उसके सही कदोखाल के साथ पेश नहीं किया। उसमें इल्म के जो जवाहरात थे उसको हमने नहीं चुने। वी वांट इजी मनी, वी वांट अवर रिलैक्सेशन। इससे आपको ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। हकीकी खुशी वहाँ है कि जहाँ नफ्स पर खुशी तारी हो, जहाँ रूह पर खुशी तारी हो, जहाँ वजूद पर खुशी तारी हो। इस्लाम ने आपको वो सारे तरीक़े बतला दिए हैं। इंतहा ये है कि आप बीमार नहीं हो सकते अगर आप एक निवाला कम खा लें और उसके लिए आप अपने पड़ोसी से पूछ लें कि कोई भूखा तो नहीं है। रमज़ान का महीना है, आप यकीनन चैरिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन चैरिटीज़ में देयर शुड नॉट बी पब्लिसिटी। रातों को छिपाकर गरीबों तक, मिस्किन आप कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो अपने पब्लिसिटी चाहते हैं। आप मुसलमान हैं। इस बीमारी के दौरान भी, गुज़िश्ता साल भी आपने बहुत कुछ किया था। आज भी जितनी आपकी इस्तिताअत है करें। गरीबों, नादारों, मोहताजों, बेकसों, बेनवाओं के दामन में आपका दस्ते पुरता बढ़ता रहे। आप खुश रहें, सलामत रहें, आपकी दौलत ईमान में इजाफ़ा हो, आपके बच्चे खुश रहें। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। तो दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का 19वां बयान। ये बयान काफ़ी गहराइयों से भरा हुआ था। यकीनन आपके जहन में इसने कई सवाल खड़े किए होंगे, और अगर ऐसे सवाल आपके जहन में आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सवाल आप हमसे ज़रूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।